Vishwa Yuva Kendra and Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi has inaugurated Project LEAD, Leadership Through Education, Action and Determination, a 4-month e-certificate course on leadership and communication from 15th January 2022 to 7th May 2022. The objective of the training is to help develop essential components of effective communication and leadership. It shall also enhance the decision-making and problem-solving skills required to lead a balanced personal and work life. On behalf of Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya. It is a pleasant morning, evening with all the dignitaries and participants. आज हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर शाम होगी और हम सब साथ मिलेंगे और इस बहुत सुंदर विषय पर बात करेंगे जो लीडरशिप और कम्युनिकेशन है और आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है। हालांकि ये हम हमेशा सीखते हैं, हम बचपन से सीखते हैं कि लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हमारे परिवारों से, हमारे दोस्तों से, हमारे हर रिश्तेदार से, लेकिन उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हमें आज सीखना होगा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर फॉर दिस ग्रेट सेशन अहेड. We are inaugurating our much long awaited program, that is Team Lead, Project Lead, which means leading through education, action and determination. We promise you that we will make this 4-month e-certificate course on leadership and communication an enjoyable learning. A very good evening to everyone. Aditi Mahavidyalaya has initiated many short-term courses recently on digital literacy course, creative writing, and now the Project LEAD, a 4-month e-certificate course on leadership and communication. If I talk about the vision behind launching these short-term courses, I would like to convey to all my dear students, the fresh graduates just completed schooling and in-service or out-of-service participants, that today the need of the employers is that never-ending requirements. A basic degree or diploma certificate is not enough to get significant employment opportunities in the present conditions. Every employer looks for an extra skill in the candidates that can make them stand different from other employees, and further, those skills will help them in improving their work efficiency and profile. And with the easy accessibility of the internet and electronic devices, students can enroll under the short-term courses that offer the professional ethics. These short-term courses help in gaining knowledge, skills, and value-adding elements to the profile of the student. A number of short-term courses is rising day by day at a great pace, and all the types of short-term courses are also varying according to the demand of the market. Short-term course that can give a competitive edge and also help develop oneself personally, no matter what stage of education you are, one must keep learning. Depending on the field, there are many skills, tools, techniques, languages that help one gain an upper hand. This is where the short-term courses help. Online certificate and diploma courses are simply a great way to fill the gaps in our professional knowledge without the substantial investment required for a full-time study programs. Incorporating regular online short-term courses into professional life is a great habit to develop and will help to acquire the key skills. With regular online certification courses, that there is a high degree of freedom that allows us to strategically build the skills you can apply to your current job or to qualify you for the job you aspire to be. Skills in leadership and communication can help you advance the abilities applicable across a great many job positions.
undergraduate and fresh graduate students face a great many issues to consider regarding the next step in their academic or professional lives. Short-term online courses have many benefits that can help, like you can take time to find out where you really want to go next, while always equipping you with the brand new knowledge and the skills for your future. For many young people, keeping what career to embark upon and what subject to do at university is not always as clear as it should be. This we realize when the student enters the college. Short online courses give you a valuable opportunity to test your interests and give yourself the best chance of finding out which direction you want to head inexpensively and conveniently. Given their compact structure, short-term online courses focus primarily on the practical applications of the theory and knowledge. In any way, taking a short-term course is like to boost your practical professional abilities in a short span of time. Learning online is enjoyable. Study anywhere, anytime using any of your personal devices with a rich variety of multimedia learning materials at your disposal. Always have all the course material you need to complete your course, and always have your work automatically updated on your personal to-do list. The flexibility, convenience, and clear goals characterized by the online learning platforms makes the learning a pleasure, if not as a lot of fun. Whether you are a professional or a student, you could be completing the short online courses to improve your career in as little as 3 to 4 months, studying just a matter of hours per week. So personally, I feel that pursuing a short-term course or an add-on course is always and has always added advantage. I wish you all a great learning experience ahead. From past 2 months, I'm seeing that Aditi Mahavidyalaya has started a lot of short-term courses for the benefit of the students. I really want to congratulate the principal, Professor Mamta Sharma, for the initiatives which she takes. She talked about the importance of short-term courses. Let me assure you, in the times of Corona, sometimes it is a blessing in disguise. Also, we are all sitting in the comforts of our home and attending this webinar. And the students also get a lot of time nowadays, spare time from their classes also. They are spared from the botheration of coming to college, traveling, etc. So I think this is a value enhancement for them, that they can attend these kinds of courses. First of all, good evening, all the dignitaries, all the participants, and all the organizers. I'm very glad to be part of this LEAD project. Let me tell you that I think it's a very unique kind of a project whereby we are instilling a different kind of skill in our youngsters. Many a times, leader does not mean that you have to be a leader, a political leader only. You can be a leader in any area in which you are. So if you see the dictionary definition of a leader, the Oxford Dictionary defines the word leader as a person who leads or commands a group, an organization, or a country. So it could be any organization which you are heading, that you could be a leader. And developing these leadership skills is a unique thing which we need to teach to our students also. Now, a great leader is, I feel, a person who not only leads from the front, but also creates leaders. Because it is not necessary that if you're a leader, you have to have only followers, people who listen to you.
So by inspiration, by example, you have to create leaders, because there has to be, you have to hand over things to the next generation also. So you're a good leader when you create more leaders, when you take everybody along and make them leaders also. I hope everyone cannot forget the example of Sholay, where that person, Asrani, when he says, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, and बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी तो कोई बचता नहीं पीछे अगर सबको आप इधर उधर भेज देंगे. So you have to have people whom you have to teach these leadership skills also. And I think that the girls who are studying in Aditi Mahavidyalaya, they will definitely benefit from this short-term course. These are 4 months courses, and they will definitely benefit a lot from them. Some of the qualities of a good leader, if you see, the very first quality of a good leader is that he has good communication skills. Communication skills because he has to communicate to all the persons whatever he wants to. And this skill should be very sharpened. If he cannot instruct properly, then he's not a good leader. Communication का मतलब ही यही है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो दूसरा जना समझ जाए. आप किसी भी भाषा में बोलें, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए. मैं तो जब क्लास में लॉ भी पढ़ाती हूँ, द बेसिक स्किल जो है हमारे लॉ में वो यही है कि हम दूसरे जने को कम्युनिकेट कर सके. चाहे आप जज बने, चाहे आप वकील बने, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते. एंड कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ एक और स्किल जो जुड़ी हुई है उसके साथ है, that you should have a very good quality of listening also. आप दूसरे जने की बात को सुने भी, तसल्ली से सुने, पेशेंस से सुने. वही एक अच्छा लीडर होता है जो अपनी बात कम्युनिकेट अच्छे से कर सके और दूसरे की बात अच्छे से सुन सके. The second quality in a very good leader is integrity. अगर आपकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा. आप जो कह रहे हैं अगर आप उसको खुद फॉलो नहीं करते तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लीडर तो बिल्कुल खोखला लीडर है, इसके अंदर कोई दम नहीं. तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, द थर्ड क्वालिटी व्हिच आई फील इज कमिटमेंट. कमिटमेंट टू द कॉज, टू व्हाटएवर यू आर लीडिंग those people to, that commitment is absolutely essential. And then you must be a good human being. A good leader is always a good human being, and a good human being only can be a good leader. Then another very important thing which a good leader should have is the capacity to accept if there is any mistake which he has made. After all, a leader is also a human being. I feel that if any mistake has been done, then he must have a capacity to apologize for it, go back also. We can take the example and let it not be taken as a political example. अभी पीछे ही कुछ टाइम पहले हमारे देश में 3 कानून, कृषि कानून लाए गए थे. अब वो कृषि कानून अच्छे थे या बुरे थे, मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, परंतु 1 साल की जद्दोजहद के बाद जब सरकार को भी ये लगा, लीडर को भी ये लगा कि ये कानून शायद अभी उतने उपयुक्त नहीं है, तो पूरे देश के सामने आकर माफी मांगकर ये कानून वापस लिए गए. तो दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड लीडर, वेयर बाय रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट द पल्स ऑफ द डे, उन्होंने उन कानूनों को वापस दिया. तो मैं मानती हूं कि एक अच्छा लीडर वही है जो आगे से लीड कर सके बाय एग्जाम्पल. Now, out of my personal experience, I have been in many positions also, and I have felt that whenever any responsibility, any chair, कोई भी आपको कोई पोजीशन दी जाती है, तो वो पोजीशन इसलिए दी जाती है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप लोगों की मदद कर सके. So a good leader should also be a person who can help others, take others along, and therefore then he becomes a good leader. एक बहुत पुरानी कहावत है तो वो टीचर के बारे में, बट मैं उसे लीडर में फिट कर सकती हूँ. An average leader, he only leads and tells others, but a good leader begins. On the other hand, a superior leader demonstrates, and a great leader inspires others. With these words, I really wish Aditi Mahavidyalaya all success for this 4-month program which they have started, and I'm eager to listen to all the other panelists also.
विश्व युवक केंद्र से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे भाता है, मेरे साथ आत्मशुद्धि होती है। और अगर उसमें अदिति महाविद्यालय जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं अदिति महाविद्यालय को बहुत चाहता हूँ, उसका नेतृत्व, ये लीडरशिप का कार्यक्रम है, उसका नेतृत्व बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं व्यस्त हूँ आज, इसलिए क्षमा की याचना करता हूँ, लेकिन मैं जुड़ना चाहता था। और मैंने प्रोफेसर रजनी आबी जो मेरी सखी हैं, कॉलीग हैं, और इस समय विश्वविद्यालय का भी एक प्रकार से नेतृत्व ही कर रही है एज प्रॉक्टर, उनको भी मैंने सुना अभी थोड़ा, और मुझे लगा कि रजनी जी ने तो मेरे मन की सारी बातें कह दी हैं, तो अब मेरे लिए कुछ कहना बचा नहीं है। परंतु मैं कुछ फिर भी दोहराना चाहूंगा। इट इज अ डिलाइट। ममता जी वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो भी हैं, सब लोग हैं, तो थैंक यू वेरी मच। I probably think I'm addressing a young audience, and मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब when we use the term leadership and communication, तो हमारे मन में परिकल्पना होती है कुछ कोई बहुत जबरदस्त भाषण दे रहा होगा, जोरदार, या रणभूमि में कोई आगे सेना की अगुवाई कर रहा होगा, या पार्लियामेंट में कोई बोल रहा होगा। ये सारे उदाहरण हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप, आल्सो ऑफ कम्युनिकेशन। पर मैं थोड़ा हट के आज कुछ कहना चाहता हूं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की बात कही है, लीडरशिप की बात कही है। एक बहुत बढ़िया दोहा है जिसकी मैं पहली पंक्ति सुना देता हूं। इस समय वो वक्त नहीं है कि इन चीजों पे ज्यादा कुछ उल्लेख किया जाए। उड़ उड़ पंछी जहाज से फिर जहाज पे आवे। इसका तात्पर्य इतना ही होता है कि यू हैव टू बी एंकर्ड टू समथिंग। किसी एक चीज आस्था आप जुड़ जाए, उसके बाद मन को जितना भी उड़ान भरवाना चाहे भराएं, लेकिन लौट के फिर आए और अपने को रिचार्ज करें, फिर से उससे ताकत ले, फिर और उत्साह और उमंग के साथ फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कहने का यह है कि अगर आपको इन चीजों में निपुणता हासिल करनी है, इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव लीडर, you have to first look inside। अंदर ना होता है। अगर आप अपने आप को पहचान ले, अपने अंतःकरण की ध्वनि, जिसको मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं, अगर उसको पकड़ ले, उसको गंभीरता से, निष्ठा से सुनने लगे, और फिर वह जो कह रही है उसके अनुकूल संसार में कदम रखने लगे, तो आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कम्युनिकेटर, और साथ में बहुत कुछ और भी बन जाएंगे। You will become many other things also. You will definitely become a good communicator, a good leader. और मुझे उदाहरण के लिए मेरे सामने 2-3 सरल उदाहरण आते हैं जिससे मेरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। First and foremost, I think of Mahatma Gandhi. If I show you any image of Mahatma Gandhi, right from his younger days to the time he became Mahatma, to the time he died, who will think of him as a great leader, a dynamic personality, a man who could communicate effectively? परंतु गांधी जी ने तो जादू कर दिया था, कायाकल्प कर दिया देश का। कहते हैं कि उन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया, जिसको भी हाथ लगाते थे वो लीडर बन जाता था, नेतृत्व उसको आ जाता था, और खुद इतने बड़े लीडर थे कि फादर ऑफ द नेशन बन गए। परंतु गांधी जी ने कभी अपनी जीवन की यात्रा इसलिए नहीं आरंभ की थी कि मुझे फादर ऑफ द नेशन बनना है या भारत को आजादी दिलानी, वो सब नहीं था। मैं फिर उस पे आ रहा हूं। गांधी जी वॉज एंकर्ड टू अ फंडामेंटल बिलीफ। अपने अंतर्ध्वनि की आवाज जो थी, पुकार, उसको उन्होंने पकड़ लिया था। वो क्या थी? कि सत्य के अधीन रहो। उन्होंने सत्य को ईश्वर माना था, और बचपन से एक ही ध्येय था उनका। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी बहुत ही कम आयु में, 8-9 वर्ष के थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक उन्होंने देखा था। उस खेल को देखने के बाद जब वे घर आए
तो उनको जैसे लगता है अपने जीवन का ध्येय मालूम पड़ गया था। उन्होंने निर्णय लिया, उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन पर्यंत सत्य से जुड़ा रहूंगा, सत्य की खोज में ही अधीन रहूंगा। I will forever be subservient to the quest for truth. अब इसको कहते हैं अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि को पकड़ लिया और फिर जीवन भर आप उनका देखिए तो एक ही ध्येय था कि अपने जीवन का मार्ग सत्य के अधीन, सत्य के अनुकूल चलते जाएं। बाकी चीजें उनको जो हासिल हुई, चाहे वो फादर ऑफ द नेशन हो, चाहे लीडर हो, चाहे कम्युनिकेटर हो, वो सब उसी से हुआ। तो गांधी जी वहां मैदान में बड़ी भारी भीड़ थी और बनारस के कुछ जिसको ऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग थे, वे भी वहां उनका विरोध करने के लिए मौजूद थे। वो एक डिबेट था। उन लोगों ने बोला जो कहना चाहते थे शास्त्रों के आधार पर, कुछ ऐसे कुछ वैसे। गांधी जी की सरल आवाज और सरल भाषा, मीठी सरल आवाज सरल भाषा में गांधी जी ने सत्य की बात कही। उन्होंने भगवत गीता का उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो उसी को ज्ञानी मानता हूं, मैं उसी को भक्त मानता हूं, मैं उसी को योगी मानता हूं जो सब में ईश्वर देखे, जिसको हर चीज में वही एक आत्मा दिखाई दे, ईश्वर का अंश, जो समान दृष्टि से सबको माने। तो उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक था, सुना दिया, और वो श्लोक बड़ा अत्यंत प्रिय है। बहुतों ने उसको सुनाया है, सुना है, माना है। गांधी जी तो उसको मंत्र की तरह रखते थे कि वह है ज्ञानी, वह है योगी, वह है श्री कृष्ण को प्रिय जो एक ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ते को खाने वाले में भेदभाव न करे, अंतर न करे। अब आप समझ लीजिए कि जो बोल रहे थे ज्ञानी, वहां पर जो विद्वत सभा थी, उनकी बातें एक तरफ रही। गांधी जी ने दिल से इस आवाज को बहुत बुलंदी से भी नहीं कहा और सबको एक माना का ये सब भी मेरे ही भाई बहन है, मैं उनका भाई हूं, हम सब एक हैं, मुझे तो कोई भेदभाव दिखता नहीं। और उस पूरी सभा ने एक मत होकर गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी उस डिबेट में उत्तीर्ण हो गए। तो इसको दोनों चीज मुझे दिखती है गांधी जी की, उसमें इफेक्टिव लीडरशिप भी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी। और वो कहां से आया? गांधी जी ने कोई थिएट्रिक्स नहीं किया, कोई नाटकीय जो है भेदभाव और नाटकीय वो मोड़ नहीं अपनाया कुछ उसमें। उन्होंने कोई ऐसा पैतरा नहीं लिया। सरल भाषा में अंतर्ध्वनि की जो आवाज थी, निष्ठा से रख दिया। आप उससे जुड़ जाइए तो बाकी चीजें आपको मिलेंगी, वो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज जो कि शायद प्रोफेसर रजनी भी कह रही थी, जितना मैं समझ सका, और बहुत अच्छा बोली थी जो मैंने सुना, उनका कहना था कि लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता है कि हर वक्त सभा, भीड़, देश को ही आप नेतृत्व दें और रास्ता बताएं। आप उसको जाने अनजाने भी कर सकते हैं। मैं उसमें श्रीनिवास रामानुजन का उदाहरण देना चाहता हूं। श्रीनिवास रामानुजन जो कि बहुत सरल घर में पैदा हुए थे, बहुत ही गरीब घर था, और वो इंटरमीडिएट भी नहीं पास कर सके थे। उन्होंने भी बहुत कम आयु में अपने अंतर्ध्वनि को पकड़ लिया था। उनके अंतःकरण की आवाज उनसे कहती थी कि आप गणित से जुड़ जाइए, यू मस्ट कनेक्ट टू मैथमेटिक्स। वे गणित को ही धर्म मान चुके थे, जैसे गांधी जी ने सत्य को धर्म माना। और गांधी जी ईश्वर की ओर सत्य के मार्ग से गए, रामानुजन ईश्वर की ओर गणित के मार्ग से। किस प्रकार से? वो निष्ठा से गणित में जुड़ गए। इसलिए नहीं जुड़े कि एक दिन मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं एक प्रखर विद्वान माना जाऊंगा, मैं गणितज्ञ ऐसा माना जाऊंगा ना। इसलिए कि अंतर्ध्वनि की आवाज कह रही थी कि गणितज्ञ बनो, गणित से जुड़ो, गणित से जुड़ो। यहां तक उनकी परीक्षा ली गई ईश्वर के माध्यम से कि खाने को नहीं मिलता था क्योंकि गणित से जुड़े थे, फेल हो जा रहे थे इम्तिहान में, खाना पीना नहीं, गरीब घर से थे, विवाह हो चुका था। परंतु रामानुजन ने कभी गणित को नहीं त्यागा। मीराबाई ने भी ठीक इसी प्रकार किया था। मीराबाई ने कभी लीडर ही नहीं दिखाई, लेकिन आज हम सब मीराबाई का नेतृत्व मानते हैं ईश्वर की भक्ति में रास्ता दिखाने के लिए। मीराबाई ने भी इसीलिए नहीं कहा था, पर उनकी भी वही निष्ठा थी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर दूझा न कोई।
रामानुजन का भी वही था कि मेरे लिए गणित है और कुछ मतलब नहीं रखता, और उससे जुड़े रहे और ऊंचे दर्जे की गणित की अंत में दुनिया ने उनको पहचाना। तब भी वो कोई नेतृत्व नहीं कर रहे थे, परंतु अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, रामानुजन ने कभी यह सोच के नहीं किया कि अब मैंने भारत को मार्ग दिखाया है, भारत इसमें आगे बढ़ेगा। परंतु ठीक रामानुजन के बाद जो पीढ़ी आई भारत की, उसमें तमाम बड़े ऊंचे दर्जे के सिर्फ गणितज्ञ ही नहीं, तमाम वैज्ञानिक इस प्रकार के लोग उत्पन्न हुए। मैंने उन सब की जीवनी बड़े ध्यान से देखी है। सबके सब कहते हैं कि रामानुजन के उदाहरण से उनको प्रेरणा मिली, उनको मार्गदर्शन मिला, उनको आत्मविश्वास मिला कि हम भी गोरों के बराबर और उनसे आगे निकल सकते हैं। यह भी एक इफेक्टिव लीडरशिप थी, यह भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। जबकि रामानुजन का ध्येय नहीं था, उनका ध्येय सिर्फ था गणित करना, परंतु उन्होंने वो भी करके दिखाया। और भारत का कितना भला किया, भारत को जो बल मिला आजादी के दौर में, उसमें रामानुजन का बहुत भारी योगदान व्यक्तिगत था। और इस प्रकार से जो प्रेरित किया लोगों को, उनको उत्साह दिया, आत्मविश्वास दिया, उससे तमाम ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। मैं एक उदाहरण देता हूं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में, वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वे उस समय एक छात्र थे, चेन्नई में पढ़ते थे, रामानुजन का नाम हो चुका था, भारत उस समय स्वाधीनता संग्राम में जुड़ा हुआ था, गोरों के अधीन था। कहते थे वो कि माहौल ऐसा था कि कुछ मनोबल टूट चुका था, परंतु रामानुजन का उदाहरण था। कहते हैं हमको प्रेरणा मिलती थी 3-4 आत्माओं से भारत में, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास रामानुजन। यह था रामानुजन का जादू। जबकि उन्होंने कभी ये तय नहीं किया था कि मैं नेतृत्व करूंगा, लीडर बनूंगा, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, लीडरी दिखाई एक तरह से, और भारत का उस विज्ञान से भला हुआ, आगे बढ़े। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको अगर इफेक्टिव लीडरशिप और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आप तमाम और चीजें करिए, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता, परंतु अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर झांकिए, वह ईश्वर की आवाज जो अंदर है उसको पकड़ लीजिए, उसके साथ निष्ठा से जुड़ जाइए। इस धरती पर, इस जीवन में उसके अनुकूल कदम रखिए, एंड यू विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड एन इफेक्टिव लीडर। आपको बल मिलेगा, निष्ठा मिलेगी, धृति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, एक से एक विद्वान प्रोफेसर्स को सुनने के बाद असल में इन 2 टॉपिक्स पे मुझे नहीं लगता मेरे पास कहने के लिए कुछ नया बचा है, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात करें या लीडरशिप की बात करें। लेकिन मैं अपने जो एक्सपीरियंस रहे हैं बॉश में लगभग पिछले 25 साल से, और उससे पहले मैं बजाज ऑटो में करीब 8 साल तक मैंने काम किया था, तो इन दोनों टॉपिक्स पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से 437 पार्टिसिपेंट मैं इस प्रोग्राम में देख रहा हूँ, तो बहुत सारे उसमें यंगस्टर्स हैं, तो काफ़ी सारे लोग उसमें से कॉर्पोरेट्स में आके काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन और लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को देखा जाता है, हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से उनको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले, तो मैं अपने आप को वहीं लिमिट करूँगा। सो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। देखिए, ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस है, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स लोग इन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो इसके बारे में बात करेंगे और मेरे ख्याल से वो डिटेल में जाएंगे। तो इसलिए मैं इनमें ज़्यादा समय ना लगा के मैं ये बात करता हूँ कि कॉर्पोरेट एंगल से और मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स किन चीज़ों को माना जाएगा। सबसे पहली बात तो है प्रिपरेशन और दी रेडीनेस, विच मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल वो नहीं है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन वो है जो सुनने वाले ने क्या सुना और सुनने वाले ने उसका क्या मतलब निकाला, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि कुछ पहले उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम अगर बिना किसी भूमिका के, बिना किसी रेडीनेस के अगर हम कुछ भी ऐसा अपने हिसाब से कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे तो सुनने वाला उसको सुनेगा नहीं, और अगर सुन भी लेगा
तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, और उसके ऊपर अगर ध्यान उसने दे भी दिया तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो इंटेंशन है उनको कम्युनिकेट करने की, उन्होंने उसको उसी तरीके से लिया, उसी तरीके से समझा और उसके ऊपर वो अमल करेंगे। तो बहुत सारा समय हम लोग कॉर्पोरेट्स में इस चीज में लगाते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम पहले काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करते हैं। खास करके मैं एग्जांपल दूं, अगर हमें मान लीजिएगा लेबर यूनियन के साथ अगर बात करनी है, किसी प्रकार का नेगोशिएशन करना है, कुछ भी हम उनको कम्युनिकेट करना है, तो बहुत सारा समय उसके अंदर प्रिपरेशन के लिए लगाया जाता है। दूसरी चीज है मोड ऑफ कम्युनिकेशन और द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खास करके जब से ये ईमेल्स आया है तब से हम ये समझते हैं कि कुछ भी हमारे माइंड में आएगा, कुछ भी हमें किसी को कहना होगा, दिन के किसी भी टाइम में हम लोग एक ईमेल लिख देंगे, और हम जिस इंटेंशन के साथ ईमेल लिख रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो सुनने वाला भी और इस ईमेल को पढ़ने वाला भी वो उसी तरीके से उसको ले लेगा और उसी तरीके से उसको समझ लेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसा लोगों को कम्युनिकेट करें, ईमेल को कब यूज करें, फोन को कब यूज करें, आमने सामने कब बात करें, और उसका टाइमिंग क्या हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। तीसरी चीज, पहले भी एक वक्ता ने इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने के लिए बोला, लिसनिंग। इसको हम लोग भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है खाली हमारी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन जो है ना, हमारी तरफ से सिर्फ बोलना या रिटन कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कम्युनिकेशन का, वो एक्चुअली लिसनिंग है, और एम्पैथी के साथ लिसनिंग है। अगर हम एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे तो हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी भी नहीं बन सकते। बहुत बार हम लोग सुनते हैं दूसरे की बात, जल्दबाजी में सुनते हैं, और इसलिए नहीं सुनते कि हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो क्या कह रहा है, हम बस जल्दी में इसलिए सुनते हैं कि हमें उसका तुरंत कुछ ना कुछ जवाब देना है। तो वी लिसन टू रिस्पॉन्ड, वी लिसन टू रिप्लाई, वी लिसन टू रिएक्ट, but we don't listen to understand. So this is very, very important that we have empathetic listening as a leader. It's very important. And it's not about what is said, but what is understood. हम बहुत बार ये चीज़ देखते हैं कि मैंने तो ऐसा बोल दिया था, या मैं तो ये कहना चाहता था, या मैं तो ये कहना चाहती थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमने क्या बोला था या किस इंटेंशन के साथ बोला था। इम्पोर्टेंट ये है कि सुनने वाले ने उसको क्या सुना, और सुनने से ज़्यादा उसने उसको क्या समझा। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक समबडी सेड अबाउट दिस, कि एक लीडर को उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट टोन में या डिफरेंट टाइप के मैसेजेस देने की अगर हम बात करेंगे, तो कभी भी वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो हमें जो भी बात कहनी है वो अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ कहनी चाहिए, और सुनने वाले को ये लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली हमें लग रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, सुनने वाले को ये लगना चाहिए कि हम लोग एक ही बात को हर प्लेटफॉर्म में या हर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं। तभी वो लोग उसके ऊपर हमारे विश्वास करेंगे, तभी हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर एक ट्रस्ट बनेगा सुनने वाले का। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टू कम्युनिकेट, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन टू। इफ वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग समथिंग, तो हमें लगता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैंने तो कुछ कम्युनिकेट किया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो भी रिसीव करने वाला कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो रिसीव कर रहे हैं उस वक्त वो अनइंटेंडेड होता है। हम वैसा नहीं कम्युनिकेट करना चाहते, क्योंकि हमने कम्युनिकेट कुछ भी नहीं किया। सुनने जो जिसको कम्युनिकेशन रिसीव करना था, उन्होंने अपनी मर्जी से उसका कुछ मतलब निकाल लिया, एंड दैट इज जनरली वाज नॉट इंटेंडेड बाय अस व्हाट दे विल बी। सो देयर इज अ बिग रिस्क इन not communicating. It's very very important that we communicate at the fastest possible speed whatever we want to say. बहुत कॉमनली हम लोग कॉर्पोरेट इंडिया में, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट इंडिया की बात क्या करूं, घर में भी और सब जगह हम लोग ये सुनते हैं, बट आई हैड टोल्ड हिम दिस, लेकिन उन्होंने टोल्ड तो ठीक है, हमने तो बोल दिया था, लेकिन वो सुनने वाले ने सुना ही नहीं, या उसको समझा ही नहीं, या हमने ये इंश्योर ही नहीं किया कि उसने ये बात मेरी सुन ली है कि नहीं, या ये मेरी बात समझ ली है कि नहीं। और what I had told her was different, कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कुछ और कहा था, उन्होंने कुछ और समझ लिया। ये बहुत कॉमनली सुना जाता है, एंड इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम सब लोग मेरे ख्याल से डे बाय डे जूझते रहते हैं, नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट लाइफ बट ऑल्सो इन द पर्सनल लाइफ। Now come to the leadership, and once again I will not spend time on the leadership styles. I'm sure all of you are going to
learn these leadership styles from the speakers during this 4 months program, whether it is about commanding, that means do what I tell you. Visionary leadership, we say, I know where we are going, so come with me. Affiliative, where we take care of the people and people come first. Democratic, where we also care for the other side and ask them, what do you think about it? We ask their ideas, their opinion. Pace setting, do as I do now, or the coaching, which means try this. So these are different styles of leadership, but I will talk about my experience of leadership during this corporate life. Leadership at workplace, why, what, how. First thing is, as a leader, you have to have shared vision. I think Professor Dinesh Singh talks about it. उन्होंने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, दूसरे भी स्पीकर्स ने लीडरशिप के बारे में बात की है. सबसे पहली बात यह है कि डू यू बिलीव इन व्हाट आई बिलीव इन. अगर एक लीडर ये इंश्योर नहीं करता कि उसके जो इंटेंडेड फॉलोअर्स हैं वो उसी चीज में बिलीव करते हैं जिसमें वो बिलीव कर रहा है, तो फिर लीडरशिप की बात वहीं पे खत्म हो जाती है. दूसरी बात है, और पहले स्पीकर्स ने बोला इसके बारे में, ट्रस्ट. जब तक लीडर के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार का कोई भी स्टाइल आप लीडरशिप पे यूज कर लो, बिना ट्रस्ट के कुछ भी काम नहीं आएगा. सो ट्रस्ट इन द लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत लोग ये सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब है आप कॉर्पोरेट लाइफ में सीनियर लेवल पे पहुंच गए, आप कंपनी के सीईओ बन गए और उस पोजीशन से आप जो भी कुछ बोलेंगे वो एक लीडरशिप का एक एग्जाम्पल होगा और एक लीडरशिप के जो मैसेजेस हैं वो आपको टॉप से आएंगे. जबकि सही मायने में ऐसा नहीं है. लीडरशिप जो है वो किसी पोजीशन से जुड़ा हुआ नहीं है. लीडरशिप की स्किल आप किसी भी लेवल पे किसी भी पोजीशन में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दोज लीडरशिप स्किल्स इन यू. तो इसमें वो एक डिपार्टमेंट हेड होना, एक कंपनी का सीईओ होना, वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. मैं तो ये कहूँगा कि कॉर्पोरेट इंडिया, और कॉर्पोरेट इंडिया ही क्या मतलब वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट्स जो है वो ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो सीनियर पोजीशंस में हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, इवन सीईओज भी हैं कंपनियों के, मैनेजर्स हैं लेकिन लीडर्स नहीं हैं. तो इसलिए इस लीडरशिप की जो बात है इसको पोजीशन के साथ या हायरार्की के साथ जोड़ के ना देखा जाए. लीडरशिप हर लेवल के ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि एक लीडर अगर फेयर है और अगर एक लीडर दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है विदाउट अथॉरिटी, क्योंकि हायर लेवल की जो पोजीशंस है, जो हायरार्की है, वहां पे हम उसको अथॉरिटी के साथ जोड़ के देखते हैं. हम ये समझते हैं कि इनके पास कंपनी की दी हुई या गवर्नमेंट की दी हुई या पब्लिक की दी हुई पावर है, तो इसलिए वो लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं. बट लीडरशिप इज नॉट अबाउट अथॉरिटी, इट इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस. तो जो आपको इन्फ्लुएंस से जो पावर मिलती है वही पावर आपकी लीडरशिप स्किल को दिखाती है, ना कि बाय डेजिग्नेशन या बाय योर पोजीशन जो आपको अथॉरिटी मिलती है. एंड लीडर हैज टू बी फेयर टू ऑल, क्योंकि जहां भी कभी पे अनफेयरनेस की अगर बात आएगी तो उसकी लीडरशिप के अंदर कोई भी उसके जो इंटेंडेड फॉलोअर्स हैं कोई विश्वास नहीं करेगा. एंड लीडरशिप इज अबाउट पीपल्स विलिंगनेस टू फॉलो. हम क्यों लीडरशिप की बात करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से वही काम करवाना चाहते हैं. सो वी वांट टू बिकम लीडर्स सो दैट अदर पीपल who are kind of followers of us, they also start believing in what we are doing, and they also, or in some way or the other, start doing the same thing what we are doing, so that we can create multipliers. So that is why we want these followers also to do what we are doing. लेकिन वो कैसा होगा? हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी वो करने के लिए जो हम करना चाहते हैं. उसमें पीपल के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, और वो विलिंगनेस तभी आएगी जब वो हमारी विजन शेयर होगी, जब वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जब वो हमको एक अथॉरिटी ना देख के एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, और जब उनको लगेगा कि हम सबके साथ फेयर हैं, किसी के साथ अनफेयर नहीं है, तभी वो लोग हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे. सो अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. If you want to be a good leader, you have to be a good listener first. क्योंकि अगर हम लीडरशिप और कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन गो हैंड इन हैंड. एंड अगर एक अच्छा लीडर बनना है उसके लिए कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स होने बहुत ज्यादा
हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोर्स के ओवरव्यू की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, ये एक 4 महीने का कोर्स है जिसमें हम इन सब एस्पेक्ट को लेके चलना चाहते हैं। द कोर्स इज नेम्ड बाय लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। So this is a 4-month e-certificate course, and that is designed by Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya and all our dignitaries, resource persons, and Ahuja sir का तो हमें इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को समझाया, तो हम थोड़ा सा इसको बना के आगे बढ़ पाए हैं। सर थैंक यू सो मच। तो इसमें हम अगर बात करें तो 6 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं: लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, stress management, team management, conflict management, and personality development. So these are the 6 core skills which we are going to impart in our participants, our students. So these are the skills and these are the skill sets we are giving to present them. Next, I just want to share session-wise detail of the e-certificate course. Today is our inaugural ceremony and the date is 15 January. And thank you so much for joining us today. And now the second session is about on leadership. So first on leadership, we are going to discuss leadership concept, types, and the date would be 22nd of January 2022. After that, the traits and qualities of a leadership, we are going to hear from our eminent speakers and resource person on the same. Third, team building and the spirit of collaborative success, because when we talk about success, without a team, we cannot achieve success. So our team plays a very important role when it comes to success, because every team is a pillar for our success. Next, the power of influence and the key to effective leadership. And the date would be 12th February 2022. And next, our next session would be on communication. So communication, we have divided it with the permission of Ahuja sir, and under his guidance, we have this communication, its concepts, types, and importance. And it would be on 18th of February 2022. Second, non-verbal communication. बिकॉज आहूजा सर से जब बात हुई तो आहूजा सर ने हमको समझाया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना बड़ा टॉपिक है और उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए जो है हमारा सेशन होगा 26 फरवरी 2022 को. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड सो we are going to listen from Ahuja sir on this about process techniques, what are the barriers of communication, and 22. And after that, after these all 3 days discussion, we are going to listen him on how to become an effective communicator. So that would be on 12th of March on 2022. Next on the session, if I would talk about, is stress management. On this, we are going to listen about understanding stress and its causes, and date would be 19 March 2022. And next is how to minimize stress and maximize happiness, and the eminent person is Jayanti ma'am. Next I would like to present about the resource person also. And next on the slide, we have designed this time management, because when we talk about communication and leadership, these are some aspects: time management, decision making, and personality development. These are the aspects we have to take care. And time management के अंदर जब हम discussion करेंगे तो सबसे पहले कि time management करने की क्या जरूरत है और उसके लिए हमें कौन-कौन से techniques की जरूरत होती है, इसके बारे में हम सुनेंगे, जिनका हमारा सेशन रहेगा 2 अप्रैल 2022 को. नेक्स्ट we would listen on conflict management, because जब भी हम leadership, communication, goal setting, हम जब भी एक अच्छी team building की बात करते हैं तो we should know how to resolve the conflict and how to manage the conflicts, manage people's interpersonal relationship. So
vision under conflict management, its style and strategies. After that, we are going to listen about personality development. जब हम लीडरशिप कम्युनिकेट ने कौन से में की जरूरत होती है उन सबको लेके चलेंगे, तभी एक अच्छी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर पाएंगे और जिससे हम जीवन में एक अच्छे काम पर पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंडर वी हैव डेवलप्ड डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटीट्यूड एंड मोटिवेशन and the session would be on 16th April 2022. Next, on personality development, we are going to listen about how to build personal and professional personality, because we should know how to manage our personal and professional life, so we have to make a balance between them. And our session would be on 23rd of April 2022. After that, we are going to listen from very renowned and successful personalities, successful leaders. We are going to listen the case studies and case sharings about from the very successful personalities. अब जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर हम विश्व युवा केंद्र में जब भी हमने ट्रेनिंग्स कराए हैं तो हम लोगों ने केस स्टडीज के साथ साथ हमारे पास इतने मोटिवेशनल हमारे स्पीकर्स आते थे कि वो हमारे जितने भी वहां पर प्रेजेंट होते थे पार्टिसिपेंट्स उनको झकझोर देते थे और बहुत अच्छे से उनको इस तरह के टिप्स देते थे कि वो आज बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो इसको भी हम अपना एक सेशन में अपना एक शेयरिंग एक्सपीरियंस का एक हम वर्टिकल लेकर आएंगे और वी विल ट्राई टू डू इट ऑन एवरी सेशन एवरी सैटरडे। अगर हम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का एक हम निकाल पाए थोड़ा समय, तो उसके लिए हमने एक अलग सेशन रखा है जिसको हम 30 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे। एंड लास्ट, जैसे कि हमारा आज इनॉग्रल सेरेमनी है, उसी तरह से हमारा एक वैलिडिक्टरी सेरेमनी भी होगा। हम आप सभी को ई सर्टिफिकेट से फेलिसिटेट करेंगे और हमारा जो सर्टिफिकेशन होगा वो होगा 7th May 2022 को। एंड नेक्स्ट, these are our course faculties. You are, I think, first of all, I am very delighted to share the course faculties, Mr. Surendra Narayana Ahuja sir, who is here to, enlighten us. अभी हम उनसे सुनेंगे, उनके सामने मैं उनके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि अभी हमारा स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी हुआ, उससे पहले सक्षम प्रोजेक्ट में भी मैंने सुना, और आहूजा सर को मैं जितनी बार भी सुनती हूँ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती हूँ। जब हमारे संस्था के जो लीडर हैं उदय शंकर सिंह जी, जो खुद कहते हैं कि वो मेरे गुरु समान है, तो हमारे लिए तो उनका ओहदा और भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच सर। Next, we have Dr. Jayanti Datta ma'am. She is a clinical psychologist and stress management और conflict management पे हमें उनसे सुनने को मिलेगा। Next, we have Sunil Keswani sir. He is a motivational speaker and he will join us on leadership. And then we have Lalit Sharma sir, who is founder Life Cradle. उनसे भी हमें टाइम मैनेजमेंट और उसके बारे में सीखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट ऑन द पैनल वी हैव गोविंद मिश्रा जी, जो कि हमें सिखाएंगे कि हमें टीम बिल्डिंग की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, करने की कितनी जरूरत है। So these are the course faculties who will be there in our next sessions. And this is our leadership team. हमारे जो उदय शंकर सर हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, चीफ कंट्रोलर भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं। तो लीडरशिप में हम उनसे जरूर वो हमें हमारा साथ देंगे और हमें समय समय पर बीच में आके थोड़ा सा उत्साहित भी करेंगे। और ममता मैम को आज हमने सुना है और आगे भी मैं चाहूंगी कि मैम आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए। और दिस इज आवर कोऑर्डिनेशन टीम फ्रॉम अदिति महाविद्यालय एंड विश्व युवा केंद्र। एंड these are some course guidelines. I just want to share about this. क्योंकि जब हम कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन ना हो तो कोर्स करने में फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है और थोड़ी सी उसकी गरिमा बनाने के लिए इनकी जरूरत भी है। So I just read it out. You have been allotted with a unique reference ID which will be used throughout the course for the purpose of attendance and assessment, etc. Zoom credential, we have already given you the Zoom credential, so we request you to please keep these Zoom credential throughout the course, and this will be beneficial for joining the program every time.
The duration of the course is from 15 January to 7th May 2022. The session would be conducted from 5 p.m. to 7 p.m. on every Saturday during the period. Please be on time and log in 15 minutes prior to the start time to avoid any kind of inconvenience. Please make sure that you are logged in with your registered name only. Just a minute, actually there is some screen issue. The link for Anandji, can you please share it once again? Can I share on behalf of you? Yeah, please, last 2 slides, please. Yeah, give me a minute. Okay, I'll just read. The link for online attendance will be shared during the training, and please note that you have to mark your attendance using the link. Next. Yeah, next slide, please. Is it visible? Yeah, is it? Yeah, it's visible, but next slide, 11th. This one, ma'am? Next. You just stop share, I'll do it again. Yeah, thank you. So next is, for the convenience of the larger section, the training would be delivered in mixed languages, that is English and Hindi both. And then you are encouraged to ask subject specific questions, and please avoid irrelevant non-subject related personal questions during the training session. The questions which seem to be relevant will be selected and answered during Q&A session or get answered via email and WhatsApp. All the participants are required to join the WhatsApp group created by us for smooth communication. Whenever there will be requirement of communication or any further information, instructions, you will be updated by the group admin. After successful completion of the program, e-certificate would be provided to all the eligible participants, for which 60% attendance is mandatory. For more update, you may also visit our website www.vykonline.org. And for any kind of clarification, please let us know on our email ID mukta.vyk@gmail.com, mukta@vykonline.org, and vyk@vykonline.org. You can also contact us on 730-388-3801, 730-388-3802. कुछ प्रश्न यहाँ पे आए हैं सर, उसका थोड़ा मैं चाहूंगा बच्चों से कि कुछ लोगों ने बार बार इसमें यूनिक आईडी की बात की है, क्योंकि हमने एक रखा है कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसमें किया जाए। तो एक तो बच्चों के पास अब ऐसा होता है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं अपनी आईडी वगैरह, ईमेल वगैरह देख के, और लेकिन उनको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया है, उनके पास एक यूनिक आईडी आया हुआ है। वही यूनिक आईडी हमेशा बोला गया है कि उसी यूनिक आईडी को हम पूरे अपने इस कार्यक्रम में हम उसको रेफर करेंगे। आपको या अटेंडेंस भरने की बात हो, असेसमेंट की बात हो, या कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह की बात हो, तो वो यूनिक आईडी। तो इसलिए अगर बाई चांस आप किसी के पास वो फॉर्म फिलअप करते समय यूनिक आईडी नहीं मिला हो तो हमारे किसी मित्र से संपर्क करके, बशर्ते कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी यूनिक आईडी आया होगा, और इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन गया होगा आपके मेल पे, जिसमें आपने जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला हुआ है। तो इस पे बिल्कुल क्लियर रहे। चैट बॉक्स में ठीक है, आपने पहला दिन था, आपने लिखा मेरी यूनिक आईडी क्या है, आप सब उसी को देखें अपने जो जब आपने फॉर्म फिलअप किया उस समय आपके पास यूनिक आईडी। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे जो भी कलीग्स हैं विश्वकेन में, अदिति महाविद्यालय, किसी से आप संपर्क करेंगे तो आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी। इसके बाद उसको आप रेफर करते चलें। एक और इसमें प्रश्न था कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हम कोशिश करेंगे
सारे इसका, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तुरंत नहीं मिलेगी, आपको कुछ समय के बाद हमारे VYK अदिति विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो भी साइट पे या कहीं भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे ये मिलेगा। एक और था, चूंकि कुछ हो सकता है लोग जो हमारे सामर्थ्य में अभी सम्मिलित हुए थे, वो असाइनमेंट की बात उन्होंने की है कि क्या इसमें असाइनमेंट भी है क्या। हमने चूंकि ये देखा था कि इसमें मोस्टली हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बाद पास ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के बहुत काम है, कॉलेज और इधर उधर के, ये सब सोच के हमने ये सोचा कि अगर हमारे बच्चे 2 घंटे यहाँ पे अपना समय दे पाए सुनने के लिए, यही अपने आप में काफी है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के भी बहुत सारे काम होते हैं। ये सोच के हमने इसमें असाइनमेंट का कोई ऐसा वो रखा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। एक और किसी ने पूछा है कि क्या इसमें एग्जाम है क्या। एग्जाम भी नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन जो हमारे आहूजा साहब ने बात की है, आप इसमें बिल्कुल मस्त होके आनंदित होके इस कोर्स को करें और उसको सीखें। आनंद के साथ सीखने की बात कुछ और होती है, क्योंकि हम कभी कभी पढ़ते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं विद्वान कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये हमें भाषा नहीं आती तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आहूजा सर जैसे विद्वानों का ये बोलना है कि लैंग्वेज एक वो बोलने का तरीका है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन आर्ट है। तो इस आर्ट को कैसे हम कार्यक्रम में सीखे, उसके बारे में हम जानकारी लेनी है। और एक और है इसमें, एक मैं देख रहा हूं, ये बच्चों से विशेष गुजारिश होगा, सबके साथ गुजारिश होगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, तो किसी का ओप्पो, किसी का वीवो, किसी का 22, 33, 44, आप जब भी ज्वाइन करें अपने नाम से ज्वाइन करें, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। आप जब अटेंडेंस फिलअप करें तब भी आपके लिए आसानी हो। तो ये हमारे लिए, क्योंकि आपके लिए भी दिक्कत होगा, हमारे लिए भी परेशानी होगी। तो जब आप ज्वाइन करें तो शायद मुझे लगता है जैसे हम लोगों के भी सिस्टम में दिखाता है कि योर नेम, तो आप उसी समय अपना नाम उसमें डालें, ताकि फिर, क्योंकि बहुत लोगों के अभी मैं देख रहा था उसमें नाम नहीं डिस्प्ले में आ रहा है, तो इस बात का जरूर जिक्र करें। अगर नाम नहीं होगा तो आप रहते हुए भी, क्योंकि एक हमने इसमें नियम निकाला है कि अटेंडेंस अगर जिसका 60% होगा, सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा, और वो अटेंडेंस उसी बेसिस पे देखा जाएगा जब आपने अपनी एंट्री हर जगह पे डाली है। और एंट्री तभी आपकी सही होगी जब आपका उस नाम से वो यूनिक आईडी पड़ेगा। तो इन 2 बातों को जरूर आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमारा नमन है सभी गुरुजन को, और खासकर 3 गुरुजन जो बिल्कुल शुरुआत से लॉगिन, मतलब टाइम से पहले लॉगिन किए, सुरेंद्र आहूजा जी, ममता मैम और ओपी गोयल साहब। ऐसे तो सभी एक से एक वक्ता आए, सभी एक से एक बात किए। दिनेश सर ने बहुत अच्छी बात की है, रजनी मैम ने बहुत अच्छे से बात की है, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और नमस्कार हमारे सबसे ज्यादा उन पार्टिसिपेंट्स को है जिन्होंने कि अपना ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट। इससे बड़ा जीवन का कोई भी न तो मजहब है, न तो कोई धर्म है, न तो कोई शैली है, न तो कोई व्यवहार है। जिस व्यक्ति ने अगर सीखने की कला सीख लिया और सिखाने की कला सीख लिया, वही सही मानवता का पाठ सीखा है। मैं तो केवल इतना समझ पाया हूँ आहूजा सर के वक्तव्य से, ओपी गोयल साहब के वक्तव्य से, कि सीखने और सिखाने की जो परंपरा है, यही हमको एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बना सकता है। तो हमारे सभी लर्नर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें एक से एक दिग्गज हैं, कुछ शिक्षक हैं, विद्वान जन हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, CSOs के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के लोग हैं। तो एक से एक व्यक्ति में विद्वता ऑलरेडी है, उसके बावजूद जो सीखना चाहते हैं, तो उन सभी को नमन है। नमन है हमें पूरे अदिति महाविद्यालय के ईच एंड एवरी मेंबर्स को, कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को विश्व केंद्र के साथ सोचा, समझा और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम पूरे अदिति महाविद्यालय के सभी कर्ता धर्ता को, एक से एक सभी जितने वहां रत्न हैं सभी को नमन करता हूँ। विश्व केंद्र के टीम के सभी साथियों को भी नमन करता हूँ, और विशेषकर 2 लोगों को मैं इजहार करना चाहूंगा, मुक्ता भारद्वाज जी और मंजू गोयल मैम, कि आप दोनों के लीडरशिप में ये 17 दिन हम लोग यात्रा करने वाले हैं,
और इसमें जहां कहीं हम लोगों से सहयोग लगे हम लोग बिल्कुल हाजिर हैं और मिलकर हम लोग काम करेंगे।